Hello guys, we discuss lyric. In Greek poetry, a lyric was a song sung to the accompaniment of a lyre, a stringed instrument. यूनानी कविता में लिरिक एक ऐसा गीत था जो लायर एक वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता था. In English literature, the term is used to describe a particular kind of poem. अंग्रेजी साहित्य में इसका प्रयोग एक विशेष प्रकार की कविता के लिए होता है. लिटरेचर मतलब होता है बेटा साहित्य. A lyric is any fairly short poem, not often longer than 50 or 60 lines. लिरिक कोई भी छोटी कविता होती है जो कि 50 या 60 पंक्तियों से अधिक लंबी नहीं होती. It expresses the feelings and thoughts of a single speaker, not necessarily the poet himself, in a personal and subjective manner. ये एक अकेले वक्ता की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करता है. जरूरी नहीं है कि वह कवि हो और इसे व्यक्तिगत रूप से गाया जाता है. The lyric is uttered in the first person, although the lyric is an intensely personal poem. The character and utterance of the speaker are shaped by the poet to achieve the desired artistic effect. इसे प्रथम पुरुष के रूप में गाया जाता है. यद्यपि लिरिक गहन रूप से व्यक्तिगत कविता होती है, मगर वक्ता के चरित्र और कथन को कवि ढालता है ताकि इच्छित नाटकीय प्रभाव प्राप्त किया जा सके. A lyric can either follow a traditional rhyme and meter scheme, or it can be what is called free verse. लिरिक में या तो परंपरागत तुकबंदी या छंद योजना को अपना सकता है या वह मुक्त छंद को अपना सकता है. The range and variety of lyric verse is immense, and lyric poetry comprises the bulk of all poetry. लिरिक कविता का दायरा और विविधता विशाल है और सभी कविता का अधिकतर भाग लिरिक कविता ही होती है. The following are the main features of a lyric. लिरिक के निम्नलिखित गुण होते हैं. Number 1, it is a short musical poem dealing with a single emotion. यह छोटी सी संगीतमय कविता होती है जो कि किसी एक भावना के बारे में होती है. Number 2, it is a well-knit poem which expresses the varying moods of the speaker poet. यह अच्छी प्रकार से संगठित कविता होती है जो वक्ता या कवि के विभिन्न मूडों को व्यक्त करती है. It is a subjective and intensely personal poem. यह गहन रूप से विषयवादी और व्यक्तिगत कविता होती है. The narrator in the lyric may be speaking alone, thinking aloud by himself, and in the process allowing the reader to gain an understanding of how he is feeling at a certain time or about a certain subject. लिरिक का वर्णनकर्ता अकेला बोलने वाला हो सकता है
जो अपने आप से बात कर रहा है और इस प्रक्रिया में पाठकों को यह ज्ञान दे रहा है कि वह किसी विशेष समय पर किसी विषय के बारे में क्या सोच रहा है। फॉर इंस्टेंस, एमिली डिकन्स I heard a fly buzz conveys to the reader the state of mind of the narrator at the time of death. The narrator of I heard a fly buzz addresses the reader directly at the start of the poem, which is a characteristic feature of the lyric, and says, I heard a fly buzz when I died. The stillness round my form was like the stillness in the air between the heavage of storm. The narrator is here communicating to the reader his her point of view about the atmosphere that surrounds him her at the time of death. उदाहरणतया एमिली डिकन्स की कविता आई हर्ड ए फ्लाई बज पाठकों को वक्ता से उसकी मौत के समय के विचारों से अवगत करवाती है और कहती है, जब मेरी मृत्यु हुई तो मैंने एक मक्खी को भिनभिनाते हुए सुना। मेरे शरीर के आसपास खामोशी ऐसी खामोशी थी जैसे तूफानों के बीच की हवा की खामोशी होती है। यहाँ पर वक्ता पाठकों को अपने उस विचार को बता रही है जो उसमें उसकी मौत के समय थे। द नरेटर ऑफ द लिरिक इज डिनोटेड बाय द आई दैट एड्रेसेस द रीडर। दिस आई may also be addressing someone specific in a particular context, as in a dramatic lyric. इस लिरिक का वक्ता मैं है जो पाठकों को संबोधित कर रहा है। यह मैं शायद किसी को किसी विशेष संदर्भ में संबोधित कर रहा है, जैसे कि नाटकीय लिरिक में होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ लिरिक इज जॉन डन्स कैननाइजेशन, वेयर द नरेटर addresses another person, presumably a lover, and explains to this address that their love can be canonized और immortalized। इस प्रकार के लिरिक का एक उदाहरण जॉन डन की कविता कैननाइजेशन है, जहाँ पर वक्ता किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित कर रहा है जो शायद प्रेमी है और उसे समझाता है कि उसका प्यार धार्मिक हो सकता है या अमर हो सकता है। द नरेटर आई of the lyric may be thus be the poet himself or herself, or may be a fictional narrator created for the purpose of explaining a particular point of view or elaborating on a subject। इस प्रकार लिरिक का मैं वक्ता कवि खुद हो सकता है या कोई काल्पनिक वक्ता हो सकता है जिसे किसी खास बात को समझाने के लिए बनाया गया हो। While the eye of canonization and I heard a fly buzz addresses the reader rather privately through a brief and passionate expression or a feeling or mood, there may
also be more public kinds of address made by the narrator. जबकि कैननाइजेशन और आई हर्ड ए फ्लाई बज का मैं पाठकों को निजी तौर पर संबोधित करता है। इसके अलावा सार्वजनिक भावना या मूड की अभिव्यक्ति भी हो सकती है। फॉर इंस्टेंस वॉल्ट विटमन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन वाज ए यूलोजी written on the death of Abraham Lincoln, and here the I speaks for the public on an occasion that is also public. उदाहरण के तौर पर वॉल्ट विटमैन की कविता ओ कैप्टन माई कैप्टन अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर लिखा गया प्रशंसा गीत था जो जनता की तरफ से था और एक सार्वजनिक अवसर के लिए था। यूलोजी होता है प्रशंसा गीत। एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ लिरिक पोइट्री दैट इज रिलेवेंट टू आवर स्टडी इज द एलिजी। द एलिजी is a formal lyric poem wherein the poet meditates on a serious and solemn theme such as death. लिरिक कविता का एक महत्वपूर्ण रूप एलिजी, बेटा एलिजी को शोकगीत भी कहते हैं, है। एलिजी एक औपचारिक लिरिक कविता होती है जिसमें कवि किसी गंभीर विषय पर विचार करता है, जैसे कि मृत्यु।